خوش آمدید دوستو، آپ سب کا سواگت ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر اشتیاق احمد۔ میرے کچھ دوستوں نے کہا ہے کہ سر جناح صاحب کے جو جناح صاحب کو آئیڈیلائز کرتے ہیں اور بہت باتیں کرتے ہیں، ہاں جی، جو آپ پہ تنقید بھی کرتے ہیں، جی آپ جناح کے خلاف ہیں، یہ ہے وہ ہے، مجلس احرار سے آپ کے تعلق ہے، حالانکہ میرے والد کا تھا یار، ایک زمانے کی بات ہے، کہاں وہ دور گیا، کہاں وہ لوگ چلے گئے۔ اینی ہاؤ، جو مجھے جانتے ہیں دے نو مائی کریڈینشلز اور سب کچھ جانتے ہیں، لیکن یہ اپنا اس قسم کی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ Who gives a bloody damn to such nonsense arguments؟ لیکن آج بڑی ایک سبسٹینشل بات میرے دوستوں نے بتائی ہے کہ جی کہا جا رہا ہے کہ جناح صاحب نے آخر میں جب وہ مرنے والے تھے تو کہا کہ میری سب سے بڑی مائی گریٹسٹ بلنڈر آف لائف اس قسم کی بات ہے کہ میں نے یہ پاکستان بنا دیا۔ میں اگر صحت ان کی بہت خراب تھی، اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میں جواہر لال کو کہوں گا کہ یہ ساری چیزیں جو پرانی غلطیاں بھول جاؤ اور اکٹھے ہو جائیں۔ یعنی اگر انہوں نے جناح صاحب نے یہ کہا ہے نا، if he has said it, let's grant کہ یہ انہوں نے کہا ہے، تو پھر جو میری ساری ریسرچ دکھاتی ہے اور جو پاکستان بننے کے بعد ریسرچ بھی بتاتی ہے، پارٹیشن آف پنجاب میں بھی اس کے روٹس ہیں، وہ تو یہی ہے کہ پاکستان کا بننا پورے اس برے صغیر کے لیے ایک ریگریسو سٹیپ تھا۔ اس نے مسلمانوں کے ٹکڑے کر دیے، انہوں نے کمیونلزم کو اور مذہبی جنون کو پالیٹکس کا ایک نارمل حصہ بنا دیا، ہاں جی، جس نے پاکستان کا تو ستیہ ناش کر دیا ہے، لیکن انڈیا کے اندر بھی وہ کمیونل کارڈ جو ہے وہ بڑا پریکٹیکل ہے۔ تو اگر واقعی جناح صاحب یہ مان گئے تھے کہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی یہ غلطی ہے اور وہ کہیں گے جواہر لال کو کہ میری غلطیاں پوری بھول جاؤ، لیٹس جوائن ٹوگیدر، تو دین مائی پوائنٹ از پروفڈ۔ اس کے سورس کون ہے؟ اکثر ہوتا یہ ہے کہ کوئی چیز جو انگلینڈ میں چھپ جائے نا، اس کو پھر وہ ریولیشن کے طور پہ لیتے ہیں۔ اس میں یہ ہے ایک ایلیکس وان ٹونزلمان، یہ انہوں نے لکھا ہے اور بعد میں نے چیک بھی کیا ہے۔ ایک ریفرنس ٹو ہے مائی بردر، یہ ایک بکلیٹ ہے فاطمہ جناح صاحبہ کا جو میرے سامنے ہے، اب تیاری کرنے کے لیے میں نے پھر اسے دوبارہ دیکھ لیا۔ وہاں سے ٹونزلمان apparently is quoting کہ فاطمہ جناح یعنی ریمبر کہ وہ ایک ڈیلیریم میں پتہ نہیں he had been on his way to کراچی۔ well does it mean کہ وہ جو 2 گھنٹے کی پلین کی فلائٹ تھی یا کوئٹہ سے ایئرپورٹ تک، what does she mean؟ یہ بڑا ایک ڈیوبیس کا سینٹنس ہے، لیکن according to فاطمہ جناح، according to تنزلمان، کشمیر ... give them ... the right ... to decide constitution ... I will complete it ... soon ... refugees give them ... all assistance ... پاکستان۔ میں نے ویسے مائی بردر والی کتاب میں دیکھا ہے جو میرے پاس ہے، اس کا آپ بھی PDF اس کا دیکھ لیں، اس کو مجاہد شریف المجاہد نے ایڈٹ کیا تھا اور ان پہ بعد میں الزام لگایا گیا کہ جی انہوں نے چند پورشن جو ہیں وہاں سے نکال دیے۔ اب نکالنے والے پورشن جو ہیں آئیڈیولوجیکل، وہ یہ تو نہیں ہو سکتے، کتاب کے اندر البتہ نہیں ہے جس کو وہ کوٹ کر رہی ہے۔ آئیڈیولوجیکل وہ ایک اور جگہ پہ ہے، اس کو ہم بعد میں ڈیل کریں گے، DD سے اور DD ناٹ سے، میں نے اس پہ بھی پوری ریسرچ کی اور جناح علی کتاب میں ہے۔ ایک اور ریفرنس وہ دے رہی ہے، اکارڈنگ ٹو ہز ڈاکٹر جناح saw لیاقت and told him that Pakistan was the biggest blunder of my life. Further yet, he declared, if now I get an opportunity, I will go to Delhi and tell Jawaharlal to forget about the follies of the past and become friends again. مجھے مزہ آ گیا نا، اگر واقعی جناح صاحب نے یہ کہا ہے تو پھر the point I have been trying to make is granted by Jinnah's own admission. Only I think this is a false or fake allege کیا جا رہا ہے، جناح صاحب نے کہا ہے۔ I'll come to the rescue of Jinnah. یہ جناح کو پتہ نہیں کس طرح استعمال کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں تو he was greater than گاندھی اور نہرو اینڈ یہ ہے وہ ہے یوں ہے، اور پھر بعد میں اسی کو کوٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پاکستان غلطی سے میں نے بنا دیا، میرا گریٹسٹ بلنڈر ہے۔ اور جواہر لال جس کو وہ ساری عمر گالیاں دیتے رہے، انہیں کہا جائے کہ لیٹس کم ٹوگیدر۔ میں نے البتہ جناح صاحب کی ایک میسج ٹو جواہر لال ضرور کوٹ کیا اور وہ ایویڈنس اس کا ملتا ہے انڈین ہائی کمشنر سری پرکاشا کی کتاب میں، ویئر جو ان کا گھر تھا بامبے والا، اس پہ ان کی ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ نہرو کو کہو یہ میرا گھر ویکیو پراپرٹی کے طور پہ انڈین گورنمنٹ نہ لے لے، یہ میری پراپرٹی رہنے دو اور اس کو آپ رینٹ آؤٹ کرو ٹو یورپینز، یہ بھی کہا ہے، اور ہر مہینے مجھے 3000 کرایہ
दिलाओ। ये जिन्ना साहब की स्टेटमेंट तब है जब करोड़ों लोग, लाखों करोड़ों लोग घर से बेघर आए हुए थे, लेकिन जिन्ना साहब को अपनी प्रॉपर्टी का ख्याल था। ये तो दिस इज इजिली ट्रेस्ड टू ऑब्जेक्टिव सोर्सेस। ये वाला बयान जो है, अगर ये सच है तो ये तो मैं ये जिन्ना पे किताब और जो बाकी जो मेरा एविडेंस है वो तो यही है कि इसने इस इलाके को एक आर्म्स रेस में डाल दिया। एक हिंदू मुस्लिम का जो वो है मजहबी डिफरेंस है उसको सियासी डिफरेंस बना दिया, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस बना दिया। हकीकत क्या है? बात ये है कि जिन्ना साहब की जिंदगी में माई पोजीशन इज जिन्ना कुड नेवर हैव सेड दिस। जिन्ना वाज टू प्राउड अ मैन एवर टू मेक सच अ स्टेटमेंट। उनकी जो लास्ट रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है ये व्हाइल ही वाज स्टिल नॉट वेल, उसके बाद तो ये ज्यादा बीमार हो गए। जियारत में जहां पे उनका इलाज हो रहा था वहां पे ये बयान उनका फिर 14 अगस्त 1948 को सुनाया गया। तो यहाँ पे जिन्ना साहब जो कह रहे हैं ना, रिकॉर्डेड है, वो ये है, डिसअपॉइंटेड इन देयर एफर्ट्स बाय अदर मीन्स टू स्ट्रैंगल द न्यू स्टेट एट इट्स वेरी बर्थ, और एनिमीज येट होप्ड दैट इकोनॉमिक मैनूवर्स वुड अचीव द ऑब्जेक्ट दे हैड एट हार्ट विद ऑल द वेल्थ ऑफ आर्गुमेंट एंड डिटेल which malice could invent or ill will devise. They prophesied that Pakistan would be left bankrupt, and what the fire and sword of the enemy could not achieve would be brought by the ruined finances of the state. But these prophets of evil have been thoroughly discredited. Our first budget was a surplus one. There was a favorable balance of trade and a steady and all-round improvement in the economic field. तो 14 अगस्त वाले बयान में तो जिन्ना साहब यही कह रहे हैं कि जो हमारे दुश्मन सोच रहे थे कि पाकिस्तान फेल हो जाएगा क्योंकि ये इकोनॉमिकली वायबल नहीं होगा, हमारे तो एक साल ने शो किया है कि हम तो सरप्लस में हैं। तो उनके सारे जो इल विल थी यानी बुरी नीयत थी, सारा कुछ फेल हो गया, हम तो कामयाब हैं। अब जिन्ना साहब ये तो है उनका पब्लिक स्टेटमेंट। डॉक्टर इलाही बख्श जिसका मैंने पहले जिक्र किया है और आगे चल के भी आपको पेश किया जाएगा कि क्या जिन्ना साहब कोई एक कॉन्स्टिट्यूशन पे काम कर रहे थे। कहा जाता है कि शरीफ अल मुजाहिद ने चंद जो इस माई ब्रदर के जो पोर्शंस है ना जिसमें जिन्ना साहब की आइडियोलॉजी की बात थी और कहा जा रहा था कि हुकूमत जो ये पाकिस्तान की है वो उससे दूर हो गई है, वो हटा दी है। तो मैंने फिर डॉन में एक जगह देखा भी, वहां पे कोई एविडेंस नहीं है कि क्या वो चीजें हटाई गई हैं, सिर्फ इतना जिक्र है। कहीं कहा जा रहा है कि जिन्ना साहब चाहते थे इक्वल राइट्स फॉर एवरीवन, ये है वो है, और लेकिन यानी 7 मार्च 1949 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने उसको चेंज कर दिया। मैंने उसको भी चैलेंज किया एंड आई वुड लाइक समबडी टू आर्ग्यू विथ मी कि वो क्यों प्लॉजिबल नहीं है एक्सप्लेनेशन, इनकी बातें तो नॉनसेंस है सारी। तो जिन्ना साहब आखिर तक देखे, जिन्ना साहब की जिंदगी में कामयाबी क्या थी? द ओनली थिंग ही कुड बी प्राउड ऑफ वाज के डिस्पाइट ऑल द ऑपोजिशन फ्रॉम द कांग्रेस लीडर्स, डिस्पाइट द ब्रिटिश बीइंग स्केप्टिकल होता है, उनको यकीन नहीं था कि ये बनाना हमारे लिए अच्छा है या नहीं। उनके सारे एफर्ट्स जो मेरी पाकिस्तान द गैरजन स्टेट किताब है और जिन्ना के अंदर डिटेल्स हैं किस तरह वहां, और फिर माउंट बैटन को और फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट को जिन्ना साहब ने अपनी हर आर्ग्यूमेंट के साथ ये मनाने की कोशिश की कि देखें हम तो लॉयल रहे हैं आपके साथ, हमने तो आपके साथ कभी कोई ऑपोजिशन नहीं की, आप हमें क्यों ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से बाहर रखेंगे। तो जिन्ना साहब जो हैं वो पाकिस्तान ही उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है जिंदगी की। एंड आई ड्यूली ग्रांट के उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज, उनकी डिटर्मिनेशन, हाँ जी, सिंगल माइंडेड वो जो है परसूट ऑफ हिज गोल प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट, आई वुड से इवन डिसाइसिव रोल इन द ब्रिटिश फाइनली अंडरस्टैंडिंग के पाकिस्तान उनके लिए बेहतर है। क्योंकि जिन्ना साहब ने फीलर छोड़ने शुरू कर दिए थे कि हम तो मियाँ वेस्टर्न ब्लॉक के होंगे और सोवियत यूनियन के खिलाफ हम आपको सर्व करेंगे। मैंने वो सारा एविडेंस दिया हुआ है। तो जाते जाते जिन्ना साहब ने ये कह दिया होगा कि मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा ब्लंडर है ये। इसको सरीला की किताब में भी जो है ना मशहूर किताब है जिसको मैंने भी यूज किया है, और इलाही बख्श की किताब को भी मैंने किया है। मैंने टुंजल मान का भी एक रेफरेंस है टू चर्चिल राइटिंग अ लेटर टू हिज वाइफ, वो भी मैंने किया, जहां पे रेफरेंसेस दिए रिलायबल, उनका मैंने पूरा जिक्र किया। आई हैव नॉट लेफ्ट एनीथिंग टू डाउट। लेकिन टुंजल मान का ये जो है ना रेफरेंस दे देना कि जी
डॉक्टर को विच डॉक्टर? इलाही बख्श? नो, इलाही बख्श की किताब मेरे पास है। कहा गया है उसके जो नई आई है उसके अंदर के उसमें से कुछ पोर्शन जो हैं वो पहली एडिशन में निकाल लिए गए, लेकिन जो लेटेस्ट पर एडिशन आई है उसमें दोबारा डाल दिए गए हों। नहीं उसमें तो यही है कि जिन्ना साहब सारे एडमायर करते थे उनके डॉक्टर ये वो कि उन्होंने पाकिस्तान कितनी डिफिकल्टी में अचीव किया है। और अगर आप माई ब्रदर को पढ़े ना जो फातिमा जिन्ना ने लिखा है, तो वो तो जिन्ना के आखिरी लफ्ज ही ये है कि एवरीबॉडी शुड सर्व पाकिस्तान। और सो देयर इज नो डाउट इन जिन्ना's माइंड अबाउट क्रिएटिंग पाकिस्तान, नॉट एट ऑल। दिस वाज हिज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट। लेकिन अगर उन्होंने कहा है तो वो जो मेरे यहाँ रिसर्च है वो तो यही शो करती है कि एक्चुअली मुसलमान जो हैं वो सबसे ज्यादा इस पार्टीशन का शिकार हुए। बाय द वे इस पे हिंदू भी रिएक्ट करते हैं और सिख भी। आई डोंट मीन दैट कि उन्होंने नुकसान नहीं सहा, बहुत नुकसान उनका भी हुआ है, लेकिन जिस मकसद के लिए ये स्टेट बनाई गई थी वो तो किसी तरीके से भी पूरा नहीं हो सका। तो अगर जिन्ना साहब ने कहा है और उनके जो बहुत मानने वाले हैं वो ये कोट करते फिरते हैं, तो फिर तो मेरी सारी रिसर्च जो है विदाउट एक्सेप्टिंग कि उन्होंने ये कहा है वो शो ही ये करती है। सो आई डोंट सी द पॉइंट। एनी हाउ एक और वीडियो भी अब मैं बना रहा हूँ कि क्या जिन्ना साहब कोई कॉन्स्टिट्यूशन पे काम कर रहे थे। इफ दिस इज ट्रू, ये भी कहा जाता है कि ये कोट किया उसने स्टैनले वॉलपोर्ट ने कि जब लियाकत अली खान और ये बाकी लोग मिलने आए तो फिर जिन्ना साहब ने अपनी बहन को कहा कि तुम्हें पता है लियाकत क्यों आया है? उन्होंने कहा क्यों? ये देखने कि मैं मर रहा हूँ या नहीं मर रहा। नाउ अगर ये डिलीट किया गया किताब से तो हो सकता है, माई ब्रदर के अंदर तो इस तरह मेरे ख्याल से नहीं है, आई विल चेक अगेन। लेकिन स्टैनले वॉलपोर्ट ने फातिमा जिन्ना को एट्रीब्यूट किया कि जी उनकी तरफ से ये है। तो वो तो मसला है कि जिन्ना साहब इर्द गिर्द सब लोगों को झाड़ देते थे। तो अगर उन्होंने कहा भी है, अब देखें लियाकत केम ट्वाइस, अगर वो ना आते तो कहते कि देखो इस कंस्पायरिंग के जिन्ना साहब जल्दी मर जाएं। अगर वो आ गया तो कहते हैं कि ये देखने आया कि ये मर रहा है या नहीं। दिस इज ऑल गॉसिप। हो सकता है जिन्ना साहब ने कह भी दिया हो, क्योंकि उनके दिल में ये तो होगा ना कि मैं इन सबको झाड़ता रहा हूं, तो हो सकता है अब ये मेरी मौत का इंतजाम कर रहे हैं। इफ दिस इज ट्रू तो दिस इज सो ट्रेजिक ऑल्सो कि एक दूसरे के साथ काम करते हुए वो एक दूसरे पे एतबार नहीं थे करते। व्हाट डज इट शो? कि ये मुस्लिम लीग की लीडरशिप जो है वो इनमें कोई कॉमन बॉन्ड नहीं था, आइडियोलॉजिकल लॉयल्टी, नथिंग। दे ऑल केम टुगेदर विद वन मिशन कि हमने जिम्मेदारी को बचाना है। हाँ जी, और ये जो है कांग्रेस का जो एक सोशलिस्ट प्रोग्राम है इसको हमने रोकना है। वो सोशलिस्ट प्रोग्राम भी ना हो सका क्योंकि जो कांग्रेस की राइट विंग थी उन्होंने रिजाइन कर दिया था जब नेहरू ने ये कहा था। आई विल कम टू दैट इन अनदर सीरीज ऑफ वीडियोस, उस पे मैं आऊंगा अलग। लेकिन बात यहाँ पे होती है कि अगर जिन्ना साहब का ये बयान है कि माई ग्रेटेस्ट ब्लंडर ऑफ लाइफ वॉज टू क्रिएट पाकिस्तान and I will, if I get well, I'll tell Jawaharlal that let's forget the follies of the past and we become friends again. कहीं लिखा जाता है we join together, यहाँ पे friends again वाली quotation है। So then Jinnah is admitting something which I have demonstrated in 2-3 books. I don't see the point. कहा जाता है जी जिन्ना साहब ने ये इसलिए कहा था कि उनके इर्द गिर्द वो जो थे मुस्लिम लीगर वो बेकार थे। Well, that is also true. Jinnah is on record saying, who says कि मुस्लिम लीग ने ये पाकिस्तान बनाया है? It is I and my stenographer who created Pakistan. I have quoted that. कई किताबों में वो आ जाता है। तो anyhow, if Jinnah said this, then it proves my point. But I think Jinnah never said it. ये एक आफ्टर थॉट है, और वो होता है कि किसी ने ये कह दिया कि डॉक्टर का इलाही बख्श की किताब में बिल्कुल भी नहीं है। It's never even remotely mentioned. बल्कि उनकी किताब में जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें है कि जिन्ना साहब चाहते थे कि ये इक्वल राइट्स हों ये वो, लेकिन अभी तो जिन्ना साहब की डेथ 48 सितंबर में हो गई है। ये जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये तो 7 मार्च 1949 को हुआ है। सो इट वाज नॉट येट क्लियर कि वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन होगा क्या। हाँ जी, सो देयर आर सो मेनी थिंग्स, अनदर वीडियोस रिक्वायर्ड टू गो फॉरवर्ड कि क्या वो कोई कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे या कि ये भी एक मिथ है। आई विल डील विद इट इन अनदर वीडियो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।